Hello everyone, this is Kaveri Katuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also staying at home, right? Now, today we will discuss some important MCQs on the HRM. As you know, in last 3 lectures we discussed about the MCQs on the organization behavior. Now we will move toward important MCQs on the HRM. See, here your first question is, what is the meaning of acronym HRM? HRM का क्या मीनिंग है? यहाँ एक्रोनियम क्या है उसका वो पूछ रहा है. फुल फॉर्म इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट. HRM stands for the human resource management, right. Now move to next question. Acronym CIPD stands for Chartered Institute of Personnel and Development. Chartered Institute of Personnel and Development. So here is your correct answer. Now move to next question. What is meant by acronym SHRM? SHRM stands for Strategic Human Resource Management. SRM stands for Strategic Human Resource Management. So C is your correct answer. HCM stands for High Commitment Management, right. High Commitment Management. So D is your correct answer. All these acronyms are important, very important from the exam point of view. That's why I included in this lecture. Now move to next question. Which of the following is not a function normally performed by HR department? पूछ रहा है आपसे कि नॉर्मली HR डिपार्टमेंट का काम कौन सा नहीं है. अकाउंटिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट. ऑब्वियसली वी नो दैट एम्प्लॉयज रिलेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब काम किए जाते हैं HR डिपार्टमेंट्स में. अकाउंटिंग इज नॉट द वर्क ऑफ HR डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज एक्रोनियम HPWS. HPWS पूछ रहे हैं कि आप से किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. एंड here your correct answer is high performance work system, right. High performance work system. B is your correct answer. Next is, what is the mean by acronym VET? VET stands for Vocational Education and Training. Vocational Education and Training. So D is your correct answer. Now move to next question. What is meant by SME? SME किसके लिए स्टैंड करता है? यहाँ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. सो here A is your correct answer, small medium enterprises. Now move to next question. Not a type of performance appraisal. Which of the following is not a type of performance appraisal? आपसे पूछ रहा है परफॉर्मेंस अप्राजल का कौन सा टाइप नहीं है, राइट. 45 डिग्री अप्राजल ये कोई टेक्निक नहीं होती है. एज वी नो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्राजल करने के लिए हम बहुत सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. एंड 45 डिग्री अप्राजल इज नॉट टेक्निक. 360 degree appraisal technique actually used, right. So you have to remember this also. Now move to next question. What is the meaning of upward appraisal? Upward appraisal का क्या मीनिंग है? See, होता क्या है कि नॉर्मली जो मैनेजर्स होते हैं या फिर हम ये कहें कि हायर अथॉरिटी होती है, वो अपने सुबॉर्डिनेट्स के परफॉर्मेंस को अप्राजल करती है. लेकिन जब सुबॉर्डिनेट्स जो है अपने सुपीरियर की परफॉर्मेंस को अप्राजल करें तब उसे कहते हैं अपवर्ड अप्राजल. सो हियर इज योर करेक्ट आंसर एंड व्हाट इट सेज एम्प्लॉयज रेट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर, राइट. एम्प्लॉयज रेट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, व्हाट इज मीन बाय 360 डिग्री अप्राजल? अभी हमने स्टडी किया था 360 डिग्री अप्राजल, जो मैंने आपको बताया था 360 डिग्री अप्राजल टेक्निक होती है. 45 डिग्री अप्राजल कोई टेक्निक नहीं होती है. और ये टेक्निक क्या कहती है? अ सिस्टम वेयर द फीडबैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीयर सबॉर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर. इट मीन्स यहाँ पर हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक ऑब्टेन किया जाता है सबॉर्डिनेट से एंड सुपरवाइजर से. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. वट इज वेबलन इफेक्ट? नाउ वेबलन इफेक्ट क्या कहता है कि ये वेबलन इफेक्ट क्या है? सो हेयर वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एवरीवन एवरेज रेट. सभी को हम एवरेज रेट देते हैं और उस प्रैक्टिस को हम क्या कह रहे हैं? वेबलन इफेक्ट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रैक्टिस इन विच द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स periodically review their top executives and those in next lower level to determine several backups of each senior or key position in the firms is termed as. It means कि जब एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर सीनियर पोजीशन पर अगर कोई रिटायर होने वाला है
राइट तो हम पहले से ही मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले हम या कहें कि नेक्स्ट लेवल तक हमें पता होता है कि अगर इस पर्सन को यहाँ से रिटायर होना है तो इसकी जगह कौन आएगा, और उस पर्सन को अगर हम पहले से ही डिसाइड करके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो उसे सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। इट मीन्स हम नेक्स्ट लेवल जो है पहले से ही एम्प्लॉय का तैयार करके रखते हैं, और मेनली ऐसी जो टेक्निक है वो हायर पोजीशन पर अगर कोई रिटायर होने वाला हो उसी के लिए यूज़ किया जाता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पूछे हैं यहाँ पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल जो हम अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प से, एक्सटर्नल जो हम पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम एम्प्लॉयज़ को जो है रिक्रूट करते हैं। तो दो सोर्सेज आपके यूज़ किए जाते हैं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एंड डैश आर एसोसिएटेड विद द हॉर्थन स्टडीज़। हॉर्थन स्टडीज़ मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी हॉर्थन स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए थे, इसमें भी इंक्लूड किए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था जहाँ हॉर्थन का नाम आए वहाँ एल्टन का नाम आएगा, जहाँ एल्टन आए वहाँ हॉर्थन आएगा, राइट। सो हॉर्थन स्टडीज़ वॉज कंडक्टेड बाय एल्टन मायो एंड एफ जे रोथिसबेकर। और इनको भी याद रखना, ये दो पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ ह्यूमन रिलेशन प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़। एक ऐसा अटैम्प्ट जो इम्प्रूव कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ डैश एंड डैश थ्रू एन इम्प्रूव्ड 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू जो है उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। सो मोरल एंड मोटिवेशन, अगर हम एम्प्लॉयज़ का मोरल और उनका मोटिवेशन लेवल जो है उनका इम्प्रूव किया जाएगा, तभी उनका एक गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन हो पाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The industrial relations activity of personnel offer includes, ऑफिसर इंक्लूड्स। आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ऑफ पर्सनल ऑफिसर्स क्या इंक्लूड करती हैं यहाँ, ग्रीवियंस हैंडलिंग, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इट मीन्स कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ग्रीवेंस हैंडलिंग भी होती है। ऐसी अथॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ की, हम कहें कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी जो ग्रीवेंस को हैंडल करती है, और एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो है वो भी होती है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब एनालिसिस रिकॉर्ड इंक्लूड द डैश द प्रिपरेशन ऑफ डैश एंड डैश। कहते हैं जॉब एनालिसिस के रिकॉर्ड में हम किसको इंक्लूड करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन as well as job specification, right. It means कि job description and job specification जो है include किए जाते हैं इन job analysis के record में। So C is your correct answer. Now move to next question. Ramesh is conducting an interview for hiring the sales executive for his organization. रमेश जो है एक कंडक्ट कर रहा है इंटरव्यू और जो हायर करना चाहता है सेल एग्जीक्यूटिव को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ही नीड टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, और वो पर्सन की पर्सनैलिटी को जानना चाहता है, तो वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRM इज मोर डैश वेयर एज पर्सनल मैनेजमेंट इज स्लाइटली नैरो। आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ, HRM जो क्या होता है मोर ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, राइट। HRM जो है मोर ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, जबकि जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो स्लाइटली क्या होता है, नैरो होता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 20 MCQs ऑन द HRM. So if you like this video, please subscribe to my channel and give thumbs up to this video, and you can also share with your friends. And if you want any important MCQs, further important MCQs on any other topic, you can ask me in the comment box. So thanks for listening.